नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ये कहा था कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए हर हाई कोर्ट में केस दायर करना पड़ेगा। इस संबंध में अब एआईबी पार्क ने डिटेल स्टडी करवा करके 30 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने डिटेल मॉडलिटी डिसाइड की है। दोस्तों, ये जो 30 तारीख का लेटर है वो सभी एथलीट्स को एड्रेस किया गया है और इसमें जो कंटेंट्स हैं इसके, डियर कॉमरेड, सब्जेक्ट है रिस्टोरेशन ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 years एंड अबव, द situation prevailing in the industry after passing of interim order by the High Court of Punjab and Haryana, several other high courts and at Jaipur। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस संबंध में ऑर्डर किए थे और उसके बाद केरला और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं हाल ही में। पार्क ने अपने लेटर के फर्स्ट पैरे में लिखा है कि members of the governing council are well aware about initiatives taken by our organization as well as by CBPRO by writing to Secretary DFS, Ministry of Finance, Government of India and Chairman IBA inter alia demanding immediate implementation of the order passed by various high courts in regard to the above subject. All the similarly placed pensioners in the banking industry and also requested both authorities to follow the honest litigation policy for senior citizen of the country so as to avoid further litigation in this regard. Meanwhile, different affiliates of our organization have very successfully fought the legal battle and got favorable court order in favor of the aggrieved petitioner, restraining the respective bank to recover the committed value of pension. As our information goes, several other affiliates are in the process of approaching the court of law within next few days। ये तो काफी लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि स्टे ले लिया जाए। In the given circumstances, AIB Park had been in regular touch with the lawyers to explore the possibility of our approaching the court of law in our representative capacity to seek similar such relief for all the members of our affiliates who are similarly placed। In this connection, we wish to advise the following fact to our comrades. Out of our total membership, a substantial chunk fall under the category and the huge number can be solely imagined by any reasonable standard. We are required to provide a list of some selected aggrieved member as also parties to the petition। Here lies the difficulty of giving certain names which will go in the lot of question at ground level as to why others are omitted। However, the lawyers are insisting for furnishing the very list of names of our members who are affected with the certain details of each member। कल जब मैंने अपने वीडियो में यही डिटेल दी थी तो कुछ लोगों के ये कमेंट्स थे कि ये सब डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जब मेंबर्स की तरफ से एआईबी पार्क या बड़ी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केस फाइल करेगी तो उसमें ये सब फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये इससे क्लियर हो रहा है कि लॉयर्स द्वारा जो एडवाइस दी गई है वो उसको तो मानना ही पड़ेगा। बी पार्ट में उन्होंने लिखा है, द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी इन टोटल मेंबरशिप बीइंग टू ह्यूज, इट इज गोइंग टू बी अ complicated and a very exhaustive exercise for AIB Park as an apex body of bank pensioners and retirees with a very large membership. The legal cost involved too exorbitantly high as lawyer
are asking for certain fixed sum of fee per member, which collectively runs into several lakh of rupees. तो इसमें जहाँ तक खर्चे की बात है तो ये तो इन्वॉल्व रहेगा ही, लेकिन ना इसके साथ कुछ लोगों का ये भी सजेशन था कि क्यों नहीं AIB पार्क या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन PIL फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि एसोसिएशन PIL फाइल करके सभी लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से ले सकती है। इस संदर्भ में मैं AIB पार्क से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अल्टरनेट को भी एक्सप्लोर कर दिया जाए कि क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करके इसमें रिलीफ मिल सकता है या नहीं। अब इसमें फर्दर इन्होंने लिखा, इन व्यू ऑफ द अबव वी रिक्वेस्ट आवर एफिलिएट्स हु आर येट टू सीक लीगल रेमेडी to consider the eligibility of their approaching the court of law on behalf of the eligible members in the next few days। तो ये एफिलेट्स के लिए कहा जा रहा है कि वो एक्सप्लोर करें अपने मेंबर्स की लिस्ट बनाने की कि कौन कौन होंगे इसमें एलिजिबल। फिफ्थ पैरे में इन्होंने लिखा, वी ऑल्सो जस्ट our affiliates that such legal recourse can be tried before the Honorable High Court of Punjab and Haryana, Kerala and Allahabad, where already stay orders are obtained. We believe that affiliates and members will appreciate our suggestions in view of the fact that the above Honorable High Court have already granted the stay orders on the subject. We on our part will be issuing guidelines regarding the formalities required to be completed. The affiliates, in consultation with their lawyers, to approach Honorable High Court with best wishes and regards. Comradely, A.V. Acharya, President, AIB Park and Joint Convener, CBPRO, सुप्रीता सरकार, जनरल सेक्रेटरी। तो दोस्तों ये इन्होंने डिटेल लेटर जारी किया और आगे 31 तारीख को उन्होंने जनरल गाइडलाइंस इशू करी हैं, जिसके द्वारा ये बताया कि कैसे आप प्रोसीड करेंगे। दोस्तों ये 31 तारीख का लेटर है और इसमें उन्होंने जनरल गाइडलाइंस टू फाइल रिट पिटिशन फॉर restoration of commutation after expiry of 10 years from the date of commutation. Details to be furnished by individual member in the following form. अब इसमें ये डिटेल है, नाम है, एम्प्लॉय नंबर है, डिजिग्नेशन है, ये सारी डिटेल्स उसको देनी पड़ेंगी जो इसमें एलिजिबल होंगे और साइन करके अपना मेंबरशिप नंबर वगैरह भी देना पड़ेगा ताकि वो कोर्ट में एफिडेविट में कंफर्म कर पाएँ कि ये हमारे मेंबर हैं और इनको ये कोर्ट से जस्टिस चाहिए। साथ ही इसमें एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन की देनी होगी जिसमें द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेम ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन इन द मीटिंग हेड इतना ये unanimously decided to file writ petition in the Honorable High Court of Place आ जाएगा for restoration of commuted portion of the basic pension after expiry of a period of 10 years from the date of commutation on behalf of its eligible members. It was further resolved to authorize Sri is about years son of Sri retired from the service of bank as designation and presently residing at address holding the post of in the name of pensioners association। ये सब डिटेल उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा उसके थ्रू और ये कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। साथ ही जो ये रेजोल्यूशन होगा ये प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी द्वारा साइन होगा। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द पेंशनर्स एसोसिएशन, कॉपी ऑफ द बायलॉज एसोसिएशन और रेगुलेशन 1995 फॉर लॉयर्स रेफरेंस, ये सब डिटेल देनी पड़ेगी। और उसके बाद साथ ही इसमें जो
कम्यूटेशन का फैक्टर है उसकी भी डिटेल टेबल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हालांकि स्टेट बैंक के केस में कम्यूटेशन के फैक्टर की टेबल अलग होगी और स्टेट बैंक के जो केस फाइल करने की बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। इसमें FSBI PA क्या निर्णय लेता है ये अभी देखना होगा, क्योंकि वो अभी डायरेक्ट मैनेजमेंट से कम्यूटेशन फैक्टर को ठीक कराने की बात कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री लेवल का क्या डिसीजन होता है इस कम्यूटेशन पीरियड को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद ही वो कोई लीगल एक्शन आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये सब चीज़ें देने के बाद लॉयर और भी एडिशनल डिटेल मांगेगा तो वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि इट इज़ एडवाइजेबल टू अप्रोच HC चंडीगढ़ और SC ऑफ केरला। कॉमरेडली यूवर्स KV आचार्य, प्रेसिडेंट AIB पार्क और एंड प्लान कन्वीनर CBPRO, सुप्रीता सरकार जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों, ये कंपाइल किया गया है डॉक्टर JD शर्मा BP AIB पार्क द्वारा। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने डिटेल गाइडलाइंस जारी किए हैं और मैं भी कुछ हद तक इन्हीं से सहमत हूँ कि जब कभी भी एसोसिएशन और उस किसी के बिहाफ पे कोई भी फाइल किया जाएगा केस, तो उसमें मेंबर्स को भी डिटेल देनी पड़ेगी और कुछ मेंबर्स के नाम भी देने पड़ेंगे। हालांकि सारे 100% मेंबर्स के जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मेंबर्स का नाम तो उसमें ऐड करना ही पड़ेगा जब केस फाइल करेंगे। दोस्तों, इन सुझाव के अलावा मैं फिर से ऐड करूंगा कि AIB पार्क को सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करने के लिए भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि काफ़ी लोगों का सजेशन था मेरे व्यूअर्स का, जो कि इस प्रकार के मुकदमे में कभी लड़े भी होंगे। दोस्तों, एक और व्यूअर द्वारा ये सजेशन दिया गया था कि यदि कोई भी एसोसिएशन किसी भी हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लेती है तो वो ऑर्डर सभी लोगों को सारे भारतवर्ष में मान्य होगा। तो ये सजेशन भी काफ़ी हद तक लॉजिकल है और इस ढंग से यदि किसी भी हाई कोर्ट से यदि कोई भी एक एसोसिएशन स्टे ऑर्डर ले लेती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए IBA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाध्य किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी संबंधी, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।